Class 3rd, Subject GK, Unit 2nd, Chapter 24, Endangered Animals, Plants and Animals. इंडेंजर्ड एनिमल्स में तो वो एनिमल्स जो दिन पे दिन, वो जानवर जो दिन पे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स विच आर द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. दे मे सून बी वाइप आउट altogether. Such animals are called endangered animals. Deforestation and hunting are the main causes for an animals to be the endangered. Recognize the following endangered animals and write their names in the blank space. Given blank. Sumatran rhinoceros. Here is a given a Sumatran rhinoceros. Okay. This is a Sumatran rhinoceros. Second is the Amur leopard. And third is a California cardor. This is a California condor. And this is a Philippine eagle. This is a Philippine eagle. ये Philippine eagle है. And this is a this animal name is a Mediterranean monk seal. And the sixth is बैक्टीरियन कैमल. ये कैमल है जो बैक्टीरियन कैमल है जिसके अंदर बैक्टीरिया होती है. एंड सेवंथ इज आइसलैंड फॉक्स. एंड 8 इज अ माउंटेन गोरिल्ला. दिस इज अ माउंटेन गोरिल्ला. ओके, सो दिस चैप्टर इज अबाउट एंडेंजर्ड एनिमल्स. जो इस समय दिन पे दिन जो जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे कुछ एनिमल्स के यहाँ पे नाम दिए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, ख़त्म होते जा रहे हैं. एंड चैप्टर 25 इज सिम्बल्स अराउंड द वर्ड्स. समथिंग दैट द स्टैंड फॉर और इज अ साइन फॉर अ थिंग्स इज कॉल्ड अ सिम्बल. किसी भी ऑर्गेनाइज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक सिम्बल्स दिया जाता है, एक साइन दिया जाता है जिसको हम लोग सिम्बल्स बोलते हैं. एवरी सिम्बल्स स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग्स और आइडियाज. Look at the symbols given below are the write down what they stand for using the help box. यहाँ पे कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं और उनको आपको बताना है कि ये कौन से सिम्बल्स हैं. आपको हेल्प बॉक्स में यहाँ पे हेल्प के लिए दिया हुआ है. तो फर्स्ट सिम्बल यू, दिस इज अ सिम्बल ऑफ ओलंपिक. यू नो वेरी वेल, दिस इज अ सिम्बल ऑफ ओलंपिक. ये जो सिम्बल है ये ओलंपिक है जिसमें 5 रिंग्स होते हैं. ठीक है, दिस इज अ सिम्बल ऑफ ओलंपिक्स. ओके, this is a symbol of Olympic. And second is this is a symbol of peace. ये शांति का पीस का symbols है. and this is a red cross symbols. and this is a justice. आप कोर्ट में ये देखा होगा आपने, justice कोर्ट में देखा होगा कि ये ऐसे साइन बना होता है. and Air India का, this is a symbol of Air India. this is a symbol of Air India. okay, एंड दिस इज़ अ हेल्प एज सेंटर. ये हेल्प एज सेंटर के का सिम्बल्स है. यहाँ पे जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए ये साइन है. एंड नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन. ये यूनाइटेड नेशन का सिंबल है. दिस इज़ अ सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन. दिस इज़ अ सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन. एंड 8 इज़ अ सिंबल ऑफ डेंजर. And 9 is a symbol of Worldwide Fund of Nature, WWF. This is a symbol of worldwide. This is a symbol of worldwide fund. Okay, this is a symbol of worldwide fund. Okay, this is a symbol of worldwide fund. So you can see Olympic. First symbol is Olympic. Second is peace. Third is Red Cross. And fourth is justice. Fifth is Air India. Sixth is help is. And 7 is United Nation. And 8 is danger. And 9 is a worldwide fund for nature. So this symbol of, आप ये देख सकते हो कुछ सिंबल हैं, किस किस चीज़ के ये सिंबल्स हैं, आपको इसको माइंड में याद रखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज
Next is 26, wildcats. Wildcats are a group of the carnivorous animals that have a soft furred body, very good vision and hearing, and they also have a sharp claws and teeth that are good for the teasing and beating their foods. Look at the pictures of wildcats given below. Recognize and write their name in the crossword given below using the हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स में यहाँ पे कुछ आपको वाइल्ड कैट्स के नेम दिए हुए हैं. आपको इनके नेम को राइट डाउन करने हैं, इसको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि कौन से. सो फर्स्ट इज यू कैन सी, फर्स्ट इज लियोपार्ड. First is leopard. So you can write a leopard here. First is a leopard. You can see leopard is here, so you can write a leopard here. This is a leopard. Okay, this is a leopard. And next is second lion. Second is lion. You can write a lion. And third is you can see cheetah. You can write a cheetah. And fourth is jaguar. Jaguar, you can see jaguar is here. This is a jaguar. You can write here jaguar. Okay, you can write here a jaguar. And next is fifth cougar. This is a cougar. Fifth is a cougar. This is a cougar. And cougar. And next is six. This is a six. Tiger. This is a tiger. ओके, ये कुछ आपके जिनके दांत बहुत शार्प और नुकीले होते हैं और इनके फर जो होते हैं, इनके जो स्किन पे जो बाल होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, और ये कोई भी चीज़ को खाने, और इनकी विजन जो होती है, इनकी आंखें जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, और ये किसी चीज़ को देखते हैं और किसी चीज़ को तुरंत, और इनके जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, और किसी चीज़ को ये बहुत जब पकड़ते हैं तो बहुत तेज से खींचते हैं, इनके दांत बहुत जो नुकीले होते हैं उसके कारण. तो ये कुछ आपके वाइल्ड कैट्स थे. ओके, सो दिस चैप्टर वाइल्ड कैट्स आर carnivorous, omnivorous and herbivorous. So what is wild cats are? First is a given of wild cats are group of carnivorous. So this is a carnivorous animals. Okay, ये carnivorous animals होते हैं. This is a carnivorous animals. And this next is given a wild cats have a sharp claw and nails, paw and teeth. तो the are goods of teasing and beating for their foods. तो wild cats have sharp claw and teeth. They also have a sharp claw and teeth. They also that are good for teasing and beating their foods. तो sharp claw and teeth. So यहाँ पे आप राइट करोगे sharp claw and
टेथ, तो आप यहाँ पे टेथ पे टिक करोगे, टेथ पे टिक करोगे और यहाँ पे फील कर लोगे टेथ. ओके, सो दिस चैप्टर इज डन. वाइल्ड कैट्स थे कुछ जिनके, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाइल्ड कैट्स थे, कितने टाइप्स के होते हैं. दैट्स फर्स्ट इज यू कैन सी लियोपार्ड, एंड सेकेंड इज लॉयन, थर्ड इज चीता, फोर्थ इज jaguar, and fifth is a cougar, and sixth is a tiger. Okay, and chapter 27 is famous structures. कुछ यहाँ पे famous structures हैं. some towers and buildings in the world are also famous. That's the country in which they are located becomes well known because of them. Following is list of some of these famous structure. यहाँ पे कुछ famous structures के नेम दिए हुए हैं. कंट्री, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. किस कंट्री में कौन सा स्ट्रक्चर है और किस लोकेशन में, किस जगह पे है. तो फर्स्ट इज इंडिया, कंट्री नेम इन इंडिया, स्ट्रक्चर नेम इज ताजमहल, एंड विच लोकेशन इज आगरा. एंड सेकेंड is a USA, Statue of Liberty, New York, Harvard. And third is Japan, Imperial Palace in a Tokyo. जापान में Imperial Palace है जो टोक्यो में है. हॉलैंड, वाइंड मिल्स, दिस किंडर डिस्क, ये जो है किंडर डिस्क में है, हॉलैंड में किंडर डिस्क में है वाइंड मिल्स. एंड इन अ फ्रांस, एम्फिल टावर जगह पेरिस पे है, पेरिस में है, जो फ्रांस में पेरिस जगह है वहाँ पे एम्फिल टावर है आपका. इजिप्ट में आपका गीजा प्लेस पे पिरामिड्स है, जिसको पिरामिड ऑफ गीजा भी बोलते हैं. सो देन चाइना, ग्रेट वॉल, नॉर्थ इन चाइना, ये नॉर्थ इन चाइना में है. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो ही बोलते हैं इसको, एंड ग्रेट वॉल. एंड ब्राज़ील, रियो डे जेनरियो, दिन क्राइस्ट द रैडमर स्टैचू, एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, प्लेस सिडनी में आपका सिडनी ओपेरा हाउस है. दिस इज अ ओपेरा हाउस. एंड ग्रीस, इन अ ग्रीस पार्थेनोन टेम्पल है एथेंस में आपका पार्थेनोन टेम्पल है. एंड आयरलैंड, इन अ ब्लैरनी स्टोन, कॉर्न में है, आयरलैंड में कॉर्न प्लेस है, वहाँ पे ब्लैरनी स्टोन है. देन इन इटली, इटली में पीसा जगह है, वहाँ पे लर्निंग टावर है. इटली में एक जगह है पीसा जहाँ पे लर्निंग टावर है. ओके, तो यू कैन सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी. हियर इज अ गिवन वन थिंग्स, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन USA, न्यूयॉर्क. ये न्यूयॉर्क में है आपका USA ऑफ लिबर्टी. एंड सेकेंड इज ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ओपेरा हाउस. एंड थर्ड इज लर्निंग टावर इज इन इटली पीसा जगह पे है. ओके, सो ये आपको लर्न करने हैं. इंडिया में ताजमहल है, आगरा में, और ये सारी चीजें हैं आपको लर्न करने हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज चैप्टर 28, एडिशन. पुट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in the 9 circles in such a way that each side of the triangle must adds up to 13. Use its digit only 1. यहाँ पे 1 to 8 तक के नंबर हमको लिखने हैं और हर एंगल से इसको ऐड करने पे हमारे 13 आए. जैसे यहाँ से ऐसे यहाँ पे भी ऐड करें तो 13 आए, इधर से भी ऐड करें तो 13 आए, और इधर से भी ऐड करें तो 13 आए. और हमको इसमें हर नंबर 1 से लेकर 8 तक, 1 to 8 तक नंबर लिखने हैं. और जो हर नंबर एक ही बार लिखना है, चाहे जहां आप जैसे भी लिख सकते हो. 1 को 1 एक बार लिखना है किसी भी सर्कल में, 2 को एक बार लिखना है, 3 को एक बार लिखना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं.
सो स्टार्ट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अब हम ऐड करेंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे, तो 8 4 12 1 13, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये वाला एंगल 13। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे 6 5 आपका 11 to 13, तो यहाँ पे भी 13 हो जाएगा। अब इधर से आप ऐड करोगे, आप जब यहाँ से ऐड करोगे, इधर के साइड से जब आप ऐड करोगे, तो देखोगे 7 3 10 2 12 and 1 13। ओके, तो दिस इज अ पैटर्न ऑफ, हर साइड से इसको ऐड करने पे 13 आना चाहिए। चूज एनी 5 नंबर्स रिटेन इन द ट्रायंगल हुज टोटल ऐड अप टू 117। यहाँ पे कोई भी इसमें से आपको 5 नंबर्स चूज करने हैं जो ऐड करने पे 117 है। सो आप इसको किसी भी एंगल से चूज कर सकते हो। फर्स्ट यू राइट 29 33 43 एंड 7 एंड 15। आप इसको प्लस करोगे, पूरा इधर से प्लस करोगे तो 117 आएगा। सो यू कैन दिस टाइप ऑफ यू कैन ट्राई दिस। ओके, आप इसको जब ऐड करोगे, नंबर्स आप ऐड करोगे तो ये 117 आएगा। एंड चैप्टर 29 इंटरनेशनल एयरलाइंस। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस दिए हुए हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एयर सर्विसेज, domestic airlines and international airlines. Domestic airlines operate their service within the country, and international airline operate their service all over the world. जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो हमारी कंट्री में केवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो इंटरनेशनल वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हैं। गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ एयरलाइंस, मैच देयर एयरलाइंस with the country and the logos of the airlines. Use different color pencil in each match. यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर पेंसिल्स यूज करने हैं। यहाँ पे एयरलाइंस है, कंट्री, यहाँ पे एयरलाइंस दिए हुए हैं, कंट्री दिए हुए हैं, और इनके लोगोज दिए हुए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज यू कैन यूज डिफरेंट एज यू कैन यूज अ रेड। आप रेड कलर यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, सो आप जब रेड कलर आप यहाँ पे यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपको फर्स्ट एयरलाइंस यूज करने हैं। तो आप यहाँ पे कौन सी एयरलाइंस यूज करोगे? गुल्फ एयरलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। सो आप गुल्फ एयरलाइंस यूज करोगे। गुल्फ एयरलाइंस, तो वेयर इज अ गुल्फ एयरलाइंस? First you can see proper way. I hope you can see. Okay, you can see students, Gulf Airlines. This airlines is in a Bahrain, Oman, आबू धाबी। ये बहरैन, ओमान, आबू धाबी में है। एंड दिस एयरलाइंस लोगो इज, यू कैन सी दिस एयरलाइंस लोगो इज गुल्फ एयर। ओके, सो यू कैन यूज दिस एयरलाइंस फर्स्ट। You can use this airlines to start to here to this. ओके, आप यहाँ से यहाँ तक यूज करोगे इसको। देन, और ये कौन सा एयरलाइंस है? गुल्फ एयरलाइंस। तो आप यहाँ पे इसको गुल्फ एयरलाइंस से मैच भी कर लोगे। एंड
नेक्स्ट इज, अब डिफरेंट डिफरेंट कलर पेंसिल से आपको यूज करने हैं, सो आप इसको देखोगे। एंड सेकंड इज रॉयल नेपाल। तो रॉयल नेपाल है आपका, ये नेपाल से आप इसको मैच करोगे। आप इसमें डिफरेंट कलर का कलर यूज कर सकते हो। दिस इज अ रॉयल नेपाल, तो दिस इज अ इन अ नेपाल, ग्रीन कलर से मैंने यूज किया है। एंड आप इसको इसके लोगो से मैच करोगे, रॉयल नेपाल। एंड नेक्स्ट इज थर्ड, Alitalia. Alitalia is in Italy. Alitalia, you can use a different type of color. Alitalia is in Italy. Alitalia is in Italy. You can match this. Okay, this, wait, Alitalia. Okay, Alitalia. And this is next is, you can use next for next. Next is a PIA, PIA. PIA is a Pakistan. This is a logo of Pakistan. Okay, यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा है केयरफुली, बट यहाँ पे एक है पाकिस्तान, दिस इज लोगो ऑफ पाकिस्तान, पिया। एंड नेक्स्ट इज क्वांटस। क्वांटस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज अ लोगो ऑफ क्वांटस, एंड दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। एंड नेक्स्ट इज Aeroflot. Aeroflot is Russia. Aeroflot is Russia. You can match is Aeroflot. And next is Swiss Air. This is a Swiss. The Swiss Air is a. This is a Swiss Air. Swiss Air, Switzerland. This is a logo of Swiss. So students, I hope you understand, because this is a very easy, I explain in your class very easy way. Okay, I hope you understand. यहाँ पे बस कुछ आपके एयरलाइंस, कंट्री और लोगोस दिए हैं, और इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप मैच करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। गुलफेयर, रॉयल नेपाल, एलिटालिया एंड पिया, क्वांटस, एरोफ्लोट एंड स्विस एयर। सो यहाँ पे कुछ इसके आपके कंट्रीज नेम दिए हुए हैं, ये एयरलाइंस किस कंट्री में और इसके लोगो कैसे हैं, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए इसके लोगोस कैसे हैं और ये किस कंट्री में, इसको अच्छे से लर्न करना है आपको। एंड चैप्टर 30 इज माय न्यू नेम। यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं और उनके न्यू नेम्स, सिटीज के नेम और उनके न्यू नेम। पहले इनके नेम क्या थे, अब क्या है। सो माई सिटीज इन इंडिया have been renamed. Given below are the old names of some cities. Use the help box and write down the new name of each city in the space provided. यहाँ पे space provided है और सभी cities के old name दिए हुए हैं और हमको यहाँ पे new name करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको help box भी provide है, ठीक है। So you can see Trivandrum. First is Trivandrum. Now Thiruvananthapuram. And second is Madras. Now new name is Chennai. Third is Cochin. Now is Kochi.
and fourth is a Banaras, and now is the new name is Varanasi. And Bombay, old name is Bombay, their old name is Bombay. Okay, old name is Bombay and new name is Mumbai. And six is old name is Calicut and not is now is a new name is a Kozhikode. And seven is a Calcutta and now is a Kolkata. And eight is Tanzore. Eight is Tanzore, now is a Tanzore. And nine is the Bangalore and now is a Bangalore, new name is Bangalore. Quilon and Kollam, now is a Kollam. So this is a old name and new name. I hope you understand. I explain in your class very easy way. So I hope student you understand this chapter very easy. Okay, old name is Trivandrum, new name is Thiruvananthapuram. Madras, new name is Chennai, old name is Cochin and new name is Kochi. Old name is Banaras, new name is Varanasi. Fifth is old name is Bombay, new name is Mumbai. And sixth is a Calicut, old name is and new name is Kozhikode. And Calcutta and now is a Kolkata. Eight is a Tanzore and now is a Tanzore. And nine is a Bangalore, now this is we are saying a new name is Bangalore. And Quilon and now is a Kollam. Okay, so this is a picture of Mumbai, Varanasi, Kozhikode, Kochi, Kollam and Kolkata. And chapter 31, trees. Here is a very big plant is called a tree. Given below are some common trees. Identify trees in the pictures. Given below are the write their name. Use the help box for clue. यहाँ पे कुछ आपको हेल्प बॉक्स के लिए क्लूज दिए हुए हैं, लाइक बनाना, पाइन, गुलमोहर, एप्पल, नीम, बनियान, एप्पल, पपाया एंड कोकोनट्स. आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन से ट्रीज को किस किस चीज के हैं. सो यू कैन वेरी इजली this tree is a coconut tree. Okay, coconut tree. And this tree is gulmohar tree. And this is a pine tree. This is a pine tree. Okay, and next is apple tree. This is an apple tree. And this is a banyan tree. And this is a neem tree. You can see very easily. आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो, हमारे एरियाज में भी ये सब पेड़ होते हैं. एंड दिस इज अ पपाया ट्री. दिस इज अ पपाया. दिस इज अ पपाया ट्री. एंड दिस इज अ बनाना ट्री. ओके, very big plant is called flower leaves. Very big plants are called very big plants are called a flower tree leaves. So आप यहाँ पे ट्री टिक करोगे और यहाँ पे आप ट्री राइट कर लोगे. ओके, एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑड आउट वन आउट. यहाँ पे आपको एक इसमें से एक जो ऑड है उसको टिक करना है. नीम, गिटार, सितार. तो जो सितार है और ये गिटार है और सितार है, सेकंड गिटार और सितार जो दोनों हैं, ये दोनों आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं. बट जो आपका नीम है वो ट्री है. सो आप नीम पे टिक कर लोगे. ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल ओवर done. I think you recognize this common trees. And next is first is a coconut, second is gulmohar, third is pine, fourth is apple, fifth is banyan, and sixth is neem. Seven is papaya, and eight is banana. एंड नेक्स्ट चैप्टर 32 वर्ल्ड्स ऑफ बुक्स. यहाँ पे कुछ बुक्स वर्ल्ड्स की बुक्स दी हुई हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स विच stimulate our imagination, enhance our vocabulary, and are a great source of recreations. Look at the some famous books given below. Read about them and write their name in the given blank space. Use the help box. यहाँ पे कुछ इमेजिनेशन जो हमारे उद्दीपन होते हैं, जो हमारे स्टिमुलेशन, जो हमारे इमेजिनेशन को, जो हमारी सोच को जो बहुत इमेजिन करने में बढ़ाते हैं, ऐसे टाइप्स के कुछ हमारे वोकाबुलरी, कुछ ग्रेट सोर्स हैं जो रिक्रिएट हुए हैं. तो यहाँ पे हम इनको देखेंगे. कुछ बुक्स के नेम हैं.
द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल हु गेट्स लॉस्ट इन अ फैंटेसी लैंड। तो एलिस इन द वंडरलैंड, लेविस कैरल। ये एलिस इन द वंडरलैंड है, एलिस इन वंडरलैंड, दैट्स नेम इज एलिस इन वंडरलैंड। एंड सेकेंड इज द स्टोरी ऑफ यंग बॉय हु ग्रोज अप इन अ जंगल, द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ये इसका नाम है, रुडयार्ड किपलिंग, द जंगल बुक। एंड स्मार्ट स्टोरी अबाउट द मोस्ट ब्रिलियंट डिटेक्टिव, एडवेंचर ऑफ Sherlock Holmes, Adventure of Sherlock Holmes. And fourth is the story of a boy in an English boarding school. This is a boy of English boarding school. This name is David Copperfield. This is name is David Copperfield. And this is fifth is Adventure of Tom Sawyer. This is the story of the mischievous boy who has made of whitewash the fence as the punishment. This name is Adventure of Tom Sawyer. And last is it is pirates story full of the action with Long John Silver, Ben Gunn, and the parrot. This name is Treasure Island. This name is a Treasure Island. This name is a Treasure Island. Here is a written a wrong. Treasure Island, not a this. Okay, Treasure Island. Okay, Treasure. This Treasure Island. Okay, you write here a Treasure Island. Okay. Here is a writer, Treasure Island. Okay, Treasure Island. Okay, Treasure Island. And next is I hope you understand this book and write their famous books name. And next is chapter 33, logical thinking. This chapter name is logical thinking. यहाँ पे आपको इसमें look at the picture of and complete each pattern. यहाँ पे आपको पिक्चर को देखना है और इसके पैटर्न को कंप्लीट करना है. So you can see, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर है, you can see स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. ओके, यहाँ पे 4 आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं. ईच एंड एवरी स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर्स में आपको 4 पिक्चर्स दिख रहे हैं. आप देखोगे इसके पैटर्न्स को आपको कंप्लीट करना है. तो आप देख रहे हो इधर के साइड ये सर्कल है, आप देख रहे हो ये सर्कल आपको इधर के साइड दिख रहा है. तो इसमें इधर जस्ट इसके अपोजिट है. ठीक है, ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है. तो यहाँ पे ये डाउन साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. तो आप ये देख रहे हो ऊपर के साइड ये अप है, तो इधर के साइड ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा. तो सेम एज आप इसी पैटर्न को आपको इस पर फॉलो करना है. आपको ये रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग आपको खुद से डेवलप करनी है कि इसमें क्या हो सकता है. एंड नेक्स्ट इज, आप इसमें देख रहे हो सेम एज वाई है. आप देख रहे हो यहाँ पे 4 ऐसे ही हैं. तो आपको इसमें देख रहे हो फर्स्ट इज आपको ये देखो सर्कल्स, केवल एक ही पॉइंट, किसी को भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो. सर्कल आपको इधर दिख रहा है और इसमें आपको इधर दिख रहा है. ये लेफ्ट साइड है, ये यहाँ पे आपको राइट साइड, ये लेफ्ट साइड दिख रहा है. इसमें अप दिख रहा है तो इसमें इधर अप इधर के साइड दिख रहा है लेफ्ट साइड, तो इसमें कहाँ हो जाएगा राइट साइड. तो आप उसी फॉर्मेट में, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड, उसी फॉर्मेट में आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. And next is this is first you can see square, triangle and circle, triangle, circle and square, circle, square and triangle. Okay, फर्स्ट आप देख रहे हो ट्रायंगल है, फर्स्ट स्क्वायर ट्रायंगल, फर्स्ट आप देख रहे हो स्क्वायर ट्रायंगल. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर
ट्रायंगल है, सर्कल है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यू कैन सी स्क्वायर, स्क्वायर, ओके। फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, तो यहाँ पे आपको सेम फिर वही पैटर्न फॉलो होगा, सर्कल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा और सर्कल हो जाएगा, ओके। एंड next is you can follow this pattern, you can see, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर में अप साइड है और यहाँ पे डाउन, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो यहाँ पे अप साइड राइट है, तो यहाँ पे अप साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। एंड नेक्स्ट इज, आप देख सकते हो यहाँ पे एक दो पार्ट में बना हुआ, ऊपर सर्कल है, नीचे स्क्वायर है, यहाँ पे देख रहे हो इस पैटर्न को, इधर सर्कल है, इधर स्क्वायर है, इधर फिर स्क्वायर है, इधर सर्कल है, तो ये सर्कल ऊपर है, स्क्वायर नीचे है, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर है, सर्कल नीचे है, तो ये दोनों पैटर्न अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फॉलो हो गए हैं। तो इस डायरेक्शन को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, तो दिस डायरेक्शन इज, जब ये अप हो गया सर्कल, ये सर्कल अप हो गया और यहाँ पे डाउन स्क्वायर हो गया, और थर्ड में क्या है, ऊपर स्क्वायर नीचे सर्कल, तो ये वाले पैटर्न पे इसको हम लोग फॉलो करेंगे, इस वाले पैटर्न पे इसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो ये वाले पैटर्न पे इसको करेंगे, तो इधर के साइड सर्कल है और इधर स्क्वायर है, तो इधर क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको केयरफुली पहले देखोगे तब आपको इसको समझ में आएगा, यू डू योर सेल्फ, ओके। इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज के कुछ फर्स्ट नेम दिए हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर। एंड थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। एंड फोर्थ इज Indira Gandhi is the first woman prime minister of India. Indira Gandhi is the first woman prime minister of India. And Tenzin Norgay is the first man climb Mount Everest. ये first man थे जो Mount Everest पे चढ़े थे, okay? First man of India is a climb on Mount Everest, ठीक है? फर्स्टली जो इंडिया के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति यही थे। एंड नेक्स्ट इज किरण बेदी, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। ये जो किरण बेदी हैं ये फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी। तो ये जो इंडिया के कुछ फर्स्ट हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको हेल्प बॉक्स में इनके नेम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। सो यू कैन सी दिस चैप्टर। Rajendra Prasad is the first president of India. Rabindranath Tagore is the first Nobel Prize winner of India. Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. And Indira Gandhi is the first woman Prime Minister of India. And Tenzin Norgay is the first man climb Mount Everest. And Kiran Bedi is the first woman IPS officer. And I hope students you understand very well. This chapter is done. The chapter 24 to 34. This is coming your unit 2 examination, okay. So thank you class, thank you students.